two-dimensional array, that is 2D array, two-dimensional. As already seen, one-dimensional array which contains only vector quantity, that is only one by one matrices, that is only one subscript. Now we studied two-dimensional array, that is again we can say it's a type of multi-dimensional array. In multi-dimensional array, two-dimensional some dimensions are there, just like two-dimensional array, three-dimensional array, four-dimensional array, and so on. So in that case, the subscript will increases. In one-dimensional array, only one subscript is there, but in two-dimensional array, two subscript is there, and in three-dimensional array, three subscript is there. But in maximum cases, two-dimensional array is more than sufficient to solve all the applications, all the problems in real world area, and rarely used three-dimensional array. Generally, three-dimensional array is used for storing 3D, that is width, height, and depth. This is the three-dimension array. But now in this lecture we study two-dimensional array, that is height and width. जैसा कि अपन दो डायमेंशंस की बात कर रहे, तो हाइट और विड्थ ये दो डायमेंशन के इसके कॉन्सेप्ट है, जिसे अपन कहेंगे रो एंड कॉलम. जैसे कि रो कैसा रहता है, एक विड्थ शो करता है और कॉलम हाइट शो करता है. सो टू डायमेंशनल एरे, it's a normal syntax. So what is two-dimensional array? Two-dimension is array is also called as matrices. It's called as matrix or matrices. तो जैसा कि अपन लोग देखते आ रहे कि matrices जो है, जो मैट्रिक्स कहा जाता है, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही है. सो इन टू डायमेंशनल एरे इट हैव ओनली टू सब्सक्रिप्ट. सिर्फ दो ही सब्सक्रिप्ट रहेंगे. इट मीन्स इट हैव टू इंडेक्सेस. कितने इंडेक्सेस रहेंगे? सिर्फ दो इंडेक्सेस रहेंगे उसके. तो वो जो दो इंडेक्सेस रहेंगे, वो दो इंडेक्स एक रो को रिप्रेजेंट करेगा और एक कॉलम को करेगा. So first index or subscript, that is first subscript or first index is represent the number of rows, whereas second subscript represent the number of column. And its representation of array is just like suppose in this diagram you take 1 2 3 4 4 cross, sorry, it's a row means suppose 1 2 3 4 4 column and 3, so it's a 3 cross 4 matrices. क्योंकि रो पहले लिखा जाता है और फिर उसके बाद कॉलम दिया जाता है, तो रो जो है यहाँ पे कितनी है? 3 है. ये फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, एंड दिस इज द थर्ड रो. तो सो टोटल रोज आर 3 and columns are 1 2 3 and this is fourth. This is fourth. So total row is 3 and column are 4. That's why it is a 3 cross 4 matrices. 3 cross 4 matrices, because 3 represent a row and 4 represent column. So RC, row and column. So in this first column, first row, as we already know in C,
language index starts from 0, that's why it takes 0 0, then 0 1, then 0 2 and 0 3, because 0 represent first row, 1 represent second row, and 2 represent third row. Same as first column represent 0, second column represent 1s, third column represent 2, and fourth column represent 3. Because it starts from 0, that's why it is n minus 1. If you take example n minus 1, it's a range. So this is the subscript. So A00, A00, A01, A02, A03. This is the first row indexing. तो एरे डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, एक्सेसिंग, जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे का यूज करोगे तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी आप डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे और एक्सेस करेंगे, तो ये 3 इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हैं. देन डिक्लेरेशन ऑफ एरे इज it have different syntax, whereas initialization of array is different syntax, because both syntax are different, because declaration of syntax means it just represent the size of row and column and its type, but in the initialization it also declared and assigned some values, where in accessing syntax it's simple, just use array name and its index. Now what is array declaration syntax? In declaration, data type, first of all use write data type, and then array name, and then number of rows, and then number of column. So this is the data type, then array name, then number of rows. So we already said that row is first and then column, because row comma column, row cross column. तो जैसा कि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि पहले रो आएगा और फिर उसके बाद कॉलम आएगा, तो ये आ गया कॉलम आपका. एरे इनिशियलाइजेशन सिंटैक्स में भी डेटा टाइप भी रहेगा, एरे का नाम रहेगा. अब जैसे कि यहाँ पे दे दिए 2 क्रॉस 2, रो भी 2 रहेंगे और 2 कॉलम रहेंगे, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये हो गया पहला रो और ये दूसरा रो, तो ये रो 1 और ये रो कितना हो गया इसका रो 2 हो गया. ठीक है, रो 1 रो 2. तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है कि अगर आपको ऐसा अगर कोई आया 2 क्रॉस 2, तो आपको उसको सेट के फॉर्म में लिखना है. मीन्स 0 0 लिख दिए, फिर 0 1 लिख दिए, फिर 1 0, फिर 1 1. तो ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया. मीन्स 0 0 में आप पहला एलिमेंट दोगे, 0 1 में दूसरा एलिमेंट दोगे उसी रो का, तो एक रो हो गई कंप्लीट, फिर उसके बाद सेकेंड रो कंप्लीट होगी. वैसे ही एरे एक्सेस करना है तो आपको सिंपली एरे का नाम और उसका इंडेक्स. अब यहाँ पे इंडेक्स आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. So now a 2-dimensional array, now we can elaborate one by one, because entire declaration can or initialization divided into 2 types, that is compile time initialization and runtime initialization. As we already seen in the first previous lecture, that is first dimension, that is 1-dimensional array, we will see the 2 things as already seen. One is compile time initialization and second is runtime initialization. तो compile time initialization और runtime initialization ये दोनों तरीके डिफरेंट है, क्योंकि compile time initialization में एक बार वैल्यू आपने असाइन कर दिया तो आप उसी को उसको चेंज नहीं कर सकते रन टाइम में, क्योंकि वो कंपाइल टाइम में असाइन हो जाती है और उसी पे आप वर्क कर सकते हैं. मीन्स एक तरह से आप बाउंडेड हो जाते हैं
आप फिक्स हो जाते हैं, आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाते बाद में। लेकिन वही अगर रन टाइम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो आप फ्री रहेंगे कोई भी एरे की वैल्यूज को एंटर करने के लिए, एंड इट्स हैव फ्रीडम, दैट इज इट्स रिप्रेजेंट इट्स प्रोग्राम इज worked as a dynamic program, whereas in compile time it treat like static, means we can't change. But in runtime initialization we can change entered value anytime, means you can run again and again and you entered different type of value. But in compile time initialization you entered only one array, is it's fixed and it cannot change at the compile time initialization. Okay, so first of all, two-dimensional array declared as follow, means two-dimensional array. Just simple write the data type, that is integer, float, char or any type. Then you just write the name of array, then row size and column size. For example, product I comma j equals to row comma column, means product is the array name and ij is a looping indexes. I represent for row and j represent for column. So it will see later. Now first of all you concentrate on initialization of an array. So array initialize in compile time and run time. So first of all we take compile time initialization. For example, int x of 2 3. So this is the two-dimensional array because it contains two subscript, that is row and column. So that first represent row 1 and second represent row second. तो देखो यहाँ पे रो 1 जो दिया हुआ है उसमें ये कॉलम की 5 6 7, ये 2 4 3। देखिए कैसा हो रहा है ये, इसको अगर मैं इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जैसा कि ये मैट्रिसेस में अगर बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 क्रॉस, सॉरी 3 क्रॉस नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें रो कितनी है, 2 रो है और इसमें कॉलम कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 देखिए आ गया ये यहाँ पे 2 क्रॉस 3। तो देखिए 5 6 7, सो पहले रो में 5 है 6 है 7 है, तो इसको अपन ने करली ब्रेसेस में यहाँ लिख दिए। मीन्स आपको एक करली ब्रेसेस ये लगाना है और एक करली ब्रेसेस इधर लगाना है और उसके अंडर में आपको 5 6 7, फिर उसके बाद सेकेंड वाला 2 4 3, मीन्स एक एक सेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट किया उसने रो 1 का और ये रिप्रेजेंट कर दिया उसने किसका, रो सेकेंड का। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो रो थी वो कितनी थी, 2। तो यहाँ पे 2 सेट, 2 करली ब्रेसेस में अपन ने रिप्रेजेंट किए। वहीं अगर और यहाँ पे कॉलम कितने थे, तो उस सेट में वैल्यूज जो आपने दी है वो कितनी दी है, 3 दी है। इट इनिशियलाइज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो टू 5 6 7 एंड सेकंड रो टू 2 4 3। सो दिस इज द कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। एक बार आप ये इनिशियलाइजेशन कर दो, नेक्स्ट टाइम आपको बार बार इनिशियलाइजेशन या वैल्यू को एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी स्टडी another thing. For example, देखिए उसी को कैसे रिप्रेजेंट किया। सपोज x is a array and which contains 6 integer value. Okay, total how much, 6, x005 x01, फिर उसके बाद 02 आ गया, फिर 11, फिर 1
यहाँ पे कितना आना चाहिए, सॉरी एक फिफ्थ वैल्यू जो आ गई वो गलत है यहाँ पे, ये कितना होना चाहिए 0 1, देखो 0 1 2, तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 10 11 12, तो जो पहला एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है। 0 1 दे दिए तो देखो 0 जहां से भी स्टार्ट हो रहा है वो सब फर्स्ट रो कहलाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस एरे को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए एक सैंपल, अगर मैट्रिसेस अगर मैं इसको बनाता हूं, तो मैट्रिसेस अगर बनाना है अपने को तो देखिए एक ये मैट्रिसेस बन रहा है यहाँ पे, तो 0 0 ये कितना था 5, फिर 6, देन 7, देन आफ्टर दैट 4 3 एंड 2। ठीक है, ये बन गया आपका मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, ये मैट्रिक्स का साइज क्या होगा ये देखते हैं। तो टोटल रोज कितनी इसमें 2, और कॉलम कितने हैं 3, सो 2 क्रॉस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0 0 जो रिप्रेजेंट हो रहा है, जीरो जीरो रिप्रेजेंट हो रहा है ये किससे, ये वाला, तो ये फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट किसको करेगा, इसको करेगा। फिर ये 6 वाला किसको करेगा, इसको करेगा। ये इसको करेगा, और ये 4 जो है ये 4 रिप्रेजेंट किसको करेगा, इसको करेगा। जस्ट मिनट, थोड़ा सा माउस इधर उधर हो जाता है। So fifth represent this, sixth represent this, and seventh represent this। अब ये जो 4 है ये 4 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 1 0। अगर मैं 4 का बात करता हूँ तो ये इसको कर देगा, 3 की बात करता हूँ तो इसको कर देगा, और ये सेकंड जो है वो इसको कर देगा, that is 2 2। So this is the representation of 2-dimensional matrices, and this representation belongs to compile time initialization, but it's same for runtime initialization. Now next topic is runtime initialization. Only difference is that we can entered और वैल्यू कैन बी इनिशियलाइज्ड थ्रू कीबोर्ड एट रन टाइम। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तब जाके आप क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं एरे को, और वो कब होगा, रन टाइम में। और इसका सिंटैक्स है सिंपली डेटा टाइप, देन एरे नेम R, कॉमा R, एरे 2, एरे 3, आप ऐसे कितने भी एरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं।
Okay, all are the different array. Now R and C represent size of row, as already discussed, size of row and size of column. This is R and this is C. Now this is the representation of syntax in diagrammatical form. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप ऑफ द एरे एलिमेंट क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा या फ्लोट रहेगा या कैरेक्टर रहेगा। एरे का नाम हो गया ये। वैलिड आइडेंटिफायर ये क्या हो सकता है, ये हो गया उसका इंट, जैसे आप दे सकते हो इंट, फ्लोट दे सकते हैं, कैर दे सकते हैं। नेम ऑफ एरे में कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर दीजिए। और ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा रो, मीन्स पहला सबस्क्रिप्ट जो है वो रो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सबस्क्रिप्ट कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। So this is the example. Suppose B is a two-dimensional array which contains 2 rows and 3 columns. 2 rows and 3 columns. So this is the row 1, row 2 and column. This is the algebraic notation. Okay. मैट्राइसेस ऐसा अलजेब्रा में आप नोट करते थे, अब उसी को मैं सी लैंग्वेज में अगर नोट करता हूँ तो देखिए इंट ले लिया मैंने, ये हो गया डेटा टाइप, बी हो गया एरे का नाम, और ये 2 रो और 3 कॉलम। तो पहला जो है वो रिप्रेजेंट फर्स्ट रो को कर रहा है और दूसरा सेकेंड रो को, और वो रिप्रेजेंट किस में करना है आपको, करली ब्रेसेस में करना है। यहाँ पे मैं स्क्वायर सिंपल पैरेंथेसिस में दिया हूँ, लेकिन वो करली ब्रेसेस में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ये डायमेंशन हो गया एरे का 2। क्यों 2 हुआ, क्योंकि इसमें 2 सबस्क्रिप्ट यानी 2 इंडेक्सेस का यूज किए गए। अगेन दिस इज the 3 example, another example of 3x3 मैट्रिक्स। देखिए 3x3 मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरे ले लिया अपन ने, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका रिप्रेजेंटेशन पूरा कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और विथ इंडेक्स। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो ये 0 0 0 1 0 2, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है 2 डायमेंशन, दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। एक है 3x4, ये एग्जांपल किसका है, 3x 4। So see that is array name, this is row index and this is column index। तो जैसा कि यहाँ 3x4 है तो टोटल रोज यहाँ 3 रिप्रेजेंट हो रही है और 0 से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही कॉलम कितने हो रहे हैं 0 से लेके 3 तक। दिस इज द कंपाइल टाइम example or program of C language. This 2x3 matrix can be initialized in compile time. See that int x 2 3, तो 5 6 7 2 4 3 जो ऑलरेडी अपन ने एग्जांपल देखे थे उसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इंट r और c दो अपन ने ले लिए। अब 2 डायमेंशनल एरे जब आप यूज करोगे तो उसको हैंडल करने के लिए आपको, जैसा कि आप 1 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करते हैं यूज करते हैं सी प्रोग्राम में, तो इट रिक्वायर्स 1 फॉर लूप। सेम आपको जब आप 2 डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हैं तो उसको हैंडल करने के लिए आपको एक इनर लूप लगेगा, एक आउटर लूप लगेगा। आउटर लूप रिप्रेजेंट होगा रो से और इनर लूप रिप्रेजेंट होगा कॉलम से। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया हूँ, ये हो गया आउटर लूप, ये इसका पूरा ये
यहाँ तक आउटर लूप चलेगा, और ये वाला जो है ये इनर लूप जो कॉलम को हैंडल करेगा, क्योंकि पहले रो पे जब आप जाएंगे तो पूरे कॉलम एक्सेस करेगा, जब आप दूसरे रो पे जाएंगे तो दूसरा कॉलम एक्सेस करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी। जैसा कि अपन ने ऑलरेडी देखा है कि जैसे इसी एग्जांपल में अगर देते हैं तो पहले रो तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 2 तक लूप चलेगा। तो जब पहला लूप चलेगा 0 वाला, दैट इज फर्स्ट रो का, तो सारे कॉलम एक्सेस होंगे। तो ये वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके 3 तक। तो वैसा ही इस प्रोग्राम में अपन ने क्या किया, यहाँ पे कितना है, 2 रो है, तो आपका जो लूप है वो कहाँ तक चल गया, 0 से लेके 2 तक मीन्स 1 तक, क्योंकि लेस देन है। फिर उसके बाद अपन इनर लूप जो लगाए वो कहाँ से लिए, 0 से लेके 3 मीन्स 0 से लेके 0 1 2 3 तक चलेगा। मीन्स पहला रो जब लूप जब चलेगा पहले रो का, तो ये कॉलम तीनों एक्सेस होंगे। जब वो सेकंड रो पे जाएगा तो फिर से ये पहले कॉलम से स्टार्ट करेगा। एंड दिस इज द रन टाइम प्रोग्राम। जस्ट वी कैन एंड just declare the array, and after execution of this program we can enter the value of array using scanf statement. ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ये आपको लगना ही है, लेकिन जस्ट आपको स्कैन करना पड़ेगा सारे एलिमेंट, इसलिए इसको रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहा जाता है। तो सिंपली अपन ने यहाँ पे जैसा कि ऑलरेडी प्रीवियस प्रोग्राम में क्या किए, ये एज इट इज अपन ने इधर लिखे, बस आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है मीन्स ये जो है ये आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा फॉर एंटरिंग द एरे वैल्यू, क्योंकि अपन इसके पहले के कंपाइल टाइम में ऑलरेडी यहाँ पे एरे की वैल्यू ले चुके हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू अपन ने ले चुके हैं, इसलिए आपको एंटर करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो कंपाइल टाइम कहलाता है। लेकिन जब आप नेक्स्ट इस पे जाओगे तो आपको मीन्स रन टाइम पे जाओगे तो आपको वो वैल्यू एंटर करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द C2 डायमेंशनल एरे। एक और कॉन्सेप्ट होता है जैक्ड एरे का, हालांकि ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जैक्ड अबाउट द जैक्ड एरे, बट दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट। So this is overall about 2 dimensional